कुछ दिखता नहीं है, मैंने अभी कल देखा था, कोई दिखी। नहीं यार, Uh, सामने दिख रहा था सब कुछ। Mamta, you will have to मेरी increase the pixel from 360 pixel to 480 or 720 pixel so that you might be able to look at the video a bit more clearly. So yeah, that might work. Okay. Okay, so let's take our new file for the day. I'm going to take it on the left and this button right, and I'm going to save it as graph number 7. I reckon. Okay, that's graph 4 for us, graph4.py. Okay, I'm going to put it as graph 4. I'm going to import numpy as np, and I'm going to import uh, matplotlib.pyplot as plt, and I am going to import pandas as pd. These are the three imports that I'm going to do, and I'm going to take some data as well. The same data that we use in yesterday's class. So I'm going to do p is equals to pd dot read underscore csv, and I'm going to copy the folders. Okay. Okay. So firstly we have the data folder here. I'm going to copy the name of it here in the double quote. Datasets. Inside that, I'm going into this folder. So I copied this name, pasted it here, and inside it, the name of the file is cancel data.csv. Okay, so I put the name of the file as well. So this is the data that we are reading. Okay. And then today we are going to do several subplots, okay, which means plotting multiple figures in multiple plots in one figure. Okay, in order to do that, we use the subplot class of matplotlib. So I'm going to do this thing, which is called figure comma a. Figure comma a is equals to plt dot subplots. Okay, and I want to plot two rows and each of those rows to have two columns. Okay, so I'm having this first figure is about two rows, this figure is about two columns. Okay, I'm going to plot four figures here, right? Let's draw those figures. Okay, in a 00, it means first graph. That graph I want to plot. In that particular graph I want to plot x. Let's take a number x. Uh, Series x. Okay. Let's take a fabricated data set like we took here today. Okay. 1, 2, 3. Okay. So x, x. Okay. And then I'm going to take is 0, 1. Okay. There is no space in here. Okay. Mind it. Between 0 and 1,
square brackets, there is no space here. Plot x comma x square, and then a 0 plot. Inside this, I'm going to plot x comma x cube, and then a1 plot. Inside this, I'm going to plot x comma let's say under root x, so x to the power 0.5. So these are the four plots that I'm going to plot, and I've defined them according to their location. Okay, um, and I can give them title, or I can give title to all of these separately if I want that. So if I want to give them title, I can give it as a0 0. Yesterday we saw the function set title, right? Dot set underscore title. Okay, set title, and I can call it linear. Okay, similarly I can come here and I can do a 0 1 dot plot. Okay, and I can type it here square. Okay, cube, and then we can have at the last okay, now let's plot this figure. Okay, plt.show. Let's see how this figure looks like. Okay, drawing the thing. See, it does not. Okay, I will use a list here. I'm going to use p dot range 1 to 10. That should solve the problem. So we have got four figures here. Okay, so this is the first figure. The title is given linear. The second figure is square, which is here. First row, second column, 0, 1. Then we have 1, 0 cube and 1, 1 square root. So this is a way through which we can plot multiple figures in multiple graphs in one figure. Okay, try this thing and let me know if you face any error. सर x की वैल्यू 1 से लेके Yes, 9 1 to तक ले 9. रहा है ना ये, तो फिर हम ये फाइल रीड क्यों करा रहे हैं ऊपर? उसका भी आगे इस्तेमाल करने वाले हैं.
डी है, इसका इस्तेमाल हम अभी आगे करेंगे, इसका इस्तेमाल अभी हमने किया नहीं है, पर मैंने इसको अभी से रीड कर लिया है, ठीक है। सर ये जो आपने A00 A01 जो लिखा है ये फिगर को डिनोट कर रहा है। ये डिनोट कर रहा है कि कौन सी, ये फिगर की लोकेशन डिनोट कर रहा है। 00 का मतलब है 0 रो 0 कॉलम, 01 का मतलब है 0 रो 1 कॉलम, फर्स्ट रो। अच्छा ओके, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, सो आई एम गोइंग टू टीच यू दैट एज वेल। ओके, इसको फिनिश करो और लेट मी नो। हो गया आप लोगों का? नो सर। Okay, जल्दी करिए आप लोग। सर एरर। हेलो सर। प्लस स्लाइड नीचे करो और एरर का कोड पूरा सेंड करो, बिकॉज आपका जो एरर आ रहा है वो तरीके से मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और ये जो एरर है वो डेटा सेट से रिलेटेड है, तो डेटा सेट वाला कोड फिलहाल के लिए आप इसको कमेंट आउट कर दो, ठीक है। और अभी भी आप इसमें लिस्ट का इस्तेमाल करो, x इक्वल्स टू 1 लेके 9 तक, और मैंने इसमें जो इस्तेमाल किया है x इज इक्वल्स टू np डॉट a range, आई रिमूव्ड लिस्ट। ओके, सर ये कहाँ पे? ममता तो एक्स आप। हाँ ये देखो np हाँ डॉट a range यूज किया हुआ है। ओके। Okay, Indra, you got read underscore CSV in Indira. You have written red red space CSV। ध्यान से देखिए आप, यह है read underscore CSV, READ
underscore CSV. This is the error that you have made. Correct it. सर, Yes. जो मेरे फाइल का लोकेशन है सही है, जैसे CSV और C अंडरस्कोप यूजर एडमिन डेस्कटॉप। सर मैंने भेजा है, ये UTF कोड कांट डिकोडेड बाय ऐसा कुछ समथिंग है। Yes, yes, I can. Okay, you do that. आप इसको खत्म करो. I'll have a look at it. The problem that we are seeing. Okay. Uh, okay, I'm able to read this data set. Mumta. तो अगर आप कोई भी error face कर रहे हो आप लोग तो I'm sending you guys this data set. Okay, just a minute. I'll send you guys the link for the data set again. It's the 157 MB data set. भाई वाईफाई ऑन कर दे। नहीं है, नहीं है। I'm sending this Pokemon data set.
WhatsApp. You all can download it from here. Okay, so you guys can download Pokemon.csv. This particular CSV, I don't think कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए इस पर्टिकुलर CSV फाइल से। तो जब भी हम पोकेमॉन डेटा पे काम करेंगे तो इस पे काम कर रहे हैं rather than कि प्रीवियस वाले। ओके ओके, अभी देखते हैं देयर इज वन अनदर वे जिसके थ्रू हम सब प्लॉट्स बना सकते हैं, which is a lot more easier as compared to this one. ठीक है, तो this time I'm going to do is plt dot subplots. ठीक है, inside this I'm going to write three numbers. Okay, first number is the number of rows that I want. Okay, the number of rows, 1 row, 2 row, 3 row. Let's say I want 3 rows. Yes, सर yes Mamta. आई मैं डाउनलोड करूँ फिर उस सर मैं क्या करूँ डाउनलोड करके हाँ, इस फाइल उस की फाइल की जगह जगह होल्ड इसको लगा लगाऊं। दो। यस, ठीक है, ओके। 2 मिनट होल्ड कर दो। सब प्लॉट्स के अंदर सबसे पहला नंबर होगा हमारा कि कितने रोज चाहिए हमें, द नंबर ऑफ रोज दैट वी वांट, एंड देन द सेकंड नंबर वुड बी द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट वी वांट। सो लेट्स से आई वांट 2 कॉलम्स हियर। ओके, so these two numbers define the size of the figure. कि ऐसा फिगर प्रेजेंट करे पाइथन का मैटप्लॉटलिब मुझे जिसमें 3 रो हो और 2 कॉलम हो इमेजेस की। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर होगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 इमेजेस लगेंगी इसमें। इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 रिप्रेजेंट करता है कि हम कौन से फिगर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 2 1 सबसे पहला फिगर। ठीक है, plt dot subplots. Let's say I'm going to plot here the first figure. I'm going to plot plt dot plot x comma x again. Okay, then in the second figure, this is the example number 2 from here. Example 2 plots. Okay. Okay, then I've got 6 more figures in this manner. Okay, subplot p. सर आउटपुट क्या आना चाहिए लगा मतलब एक ही साथ 4 फिगर। 6 फिगर आएंगे बच्चे इसमें, क्योंकि पहले वाले पार्ट के लिए जो एग्जांपल 1 था उसमें 4 फिगर आएंगी, पहले वाला एग्जांपल 2 में 6, हाँ उसमें 4 फिगर आएंगी। ओके ठीक है, दिस इज द सेकंड फिगर। तो जो लास्ट में हमने लिखा 3 2 के बाद 2 लिखा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा plt डॉट प्लॉट। ठीक है, इसके अंदर x x स्क्वायर। ठीक है, then I'm going to plot third figure. ठीक है, third graph subplot. ठीक है, and here I'm going to do 3 2 3 third image. Okay, plt dot plot, and inside it I'm going to write x x cube. Then I have subplots and 3 2 fourth figure plt dot plot and x x what I can do here is
x to the power 0.5, right? Under root plt dot subplots. Okay, this will be 325. Okay, fifth figure plt dot plot. Let's keep it simple. X to the power 4. Then plt dot subplots 3 to 6 plt dot plot, and we have x comma x to the power 5. So we have 6 figures again, and each of those figures have their own plot. Sorry, we have 6 graphs, okay, 6 subplots, and each of those plots have their own plot. And now we are going to show them inside a single figure, plt dot show. As soon as I press the run button here, this should give me, okay, that's the output for the first figure. And now I can get an output for the second figure. Which is taking a bit of time from what I can see here. Should be out soon. Come on, you can finish it quickly. सर ये बाकी सारे कमेंट डाउन होने पे रेड क्यों नहीं हो रहे? They should turn red. I am looking for them myself. Wait. I think I'm going to stop the interpreter now forcefully, and I'm going to run this code again. Okay, I'm going to run this code again. Okay, there is a small error that I have made first in the first place. It's subplot, not subplot. This is the biggest error that I have made. Just realize this. Okay, now I'm going to run this. Okay, so we have got the figure, right? This is the linear figure, this is the square, this is the cube, and then we have the under root, then we have to the power 4 and to the power 5, right? This is how we get the figures, okay? And again, if you want to, make some more different, make some more differences. For example, you can have 3 rows and 1 column only, or you can have 3 figures in 1 column only. For example, you can go ahead with something like this, where you have, let's say you want 2 figures in one plot and you want them row wise.
You can put it like one row, two column. Okay, that's one row and two column. And below that we can do PLT dot show, and this will work for you. I'm going to close this figure and we're going to get a new figure. So this time we have two figures in one row only. So depending upon your requirement, you can change the order of this particular row. Okay. I hope this part is clear to everybody. क्या बाकी सभी लोगों का? Yes, sir. Okay. हम कुछ और सिंपल चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे कि x की लिमिट और y की लिमिट कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है. I'm going to take a simple data set for that one firstly, ठीक है, और I'm going to take it 1, 2, 3, 4, 5. Y is equals to 1, 4, 9, 6, 25. So I've taken a simple data set here, okay, and or what I can do is actually much better would be to take x is equals to nb dot range, nb dot range 1 to 10,000, okay, and y we can use here as y is equals to the root of x, right? X to the power 0.5. Right, this is the y that we can use. Okay, so I'm going to do a plot here. Okay, plt dot plot, a simple plot here. Okay, and inside it I'm going to give x comma x to the power 5. Okay, and plt dot show. So firstly I'm going to show you what how the figure looks like, and then we are going to change the x limits and y limits for it. Okay, so let's plot it. I'm going to close this figure and this one as well. Let's do x to the power 0.5. This isn't how it should look like. सर Yes, okay. सर नीचे यहाँ पे 0.5 नहीं होना चाहिए. Yes. Simple syntax there. Okay, I've run the program again. Okay, I'm going to close first figure and the second figure, and we'll get a third figure. So this is how a figure looks like.
As you can see, the distance here is 2,000, 4,000, 60,000, 6,000, 8,000, 10,000. Okay, I want to change the x limit. Okay, I want to see the limits of this thing from, let's say, -10 to 15,000. Let's say. Okay, so I'm going to change this time x limit. Okay, plt dot x limit. X limit, okay, and I'm going to put it uh, from 0 to 15,000. Let's see what it does. Okay, let's see. Okay, I'm going to close the first and second figure. Okay, so this time our x limit has values to 15,000. The 15,000 point is the last point. It's not written here. Okay, so the range of x limit has changed. Similarly, we can change the limit for plt dot ylim. नेगेटिव में भी हो सकती है. Yes, you can try that as well. For example, let's say -100 से try करते हैं इसको. Okay, y limit को भी -10 से try कर लेते हैं और 150 तक जाते हैं. Let's try this. Okay, let's see how the output looks like. Okay, so this time we have स्पेस उसने नेगेटिव के लिए छोड़ दिया है, पर नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे है नहीं तो उसने लिया नहीं. ठीक है, एंड we have values from 0 to 140 which goes till 150. So basically x limit और y limit जो हमारा एक्सिस है, अगर हम उसको मैनिपुलेट करना है तो हमें उसके लिए x lim और y lim का इस्तेमाल करना होगा. ठीक है, इसके अलावा एक सिंपल चीज है जैसे कि नंबर लिखे हुए हैं. कई बार क्या होता है कि नंबर हमारे पास बहुत बड़े होते हैं. इन नंबर्स का ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं एस एक्स. ठीक है, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं. plt dot x x. ठीक है, rotation is equals to -90. I think that's how we write it. We can change them as well. Okay. So as you can see now, instead of horizontal होने के बजाय अब ये आपको वर्टिकल पोजीशन में नजर आएगा. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि 2 नीचे हो 0 वाला साइड ऊपर हो तो आप इसको -90 की जगह सिर्फ 90 भी ले सकते थे तो भी काम करता है. तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप ये सारे चेंजेस कर सकते हो. एक्स टिक्स के अलावा वाई टिक्स भी कर सकते हो इसको. ठीक है, अगर आपको जरूरत है तो. ठीक है, ये माइनस वाला स्केल नहीं दिखाएगा क्या? ओके, लेट मी ट्राई दिस. कभी यहाँ पे नेगेटिव में नंबर्स हैं ही नहीं तो शायद इसलिए शो नहीं कर रहा है, बट लेट मी ट्राई दिस अगेन. ओके, हमारे पास नंबर लार्ज इनफ है तो यहाँ पे -100 तक दिखाया है इसने, और स्केल के लिए जो वाई स्केल है उसके लिए इसने -100 तक दिखाया. एक्स स्केल के लिए मुझे लगता है अभी भी 1000 से ऊपर लेके जाना पड़ेगा. -1000 ही लेते हैं
तो शायद नजर आएगा, लार्ज इनफ नंबर के लिए ही वो दिखाएगा। ओके, वी हैव -2000, ठीक है, और यहाँ पे -100, -50, 0 ऐसे करके, ठीक है। These are the ways through which you can manipulate the x-axis and y-axis and the text as well, ठीक है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स थे जिनका हम काफी इस्तेमाल करते हैं, काफी जरूरत पड़ती है हमें काम करते हैं। स्पेसिफिकली ये जो y टेक्स्ट को हमने यहाँ पे x टेक्स्ट को हमने यहाँ पे रोटेट किया है, इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम डेट के साथ काम करते हैं। जब भी हम कोई जैसे स्टॉक मार्केट के डेटा के साथ अगर हम काम कर रहे हैं, उसमें डेट, अगर हमें डेट वाइज प्लॉट करते हैं उसको, राइट, तो डेट का फॉर्मेट होता है वो काफी लंबा होता है, 20 नवंबर 2020। तो अगर आप सब हॉरिजॉन्टली लिखोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए प्रिंट करो, लेट्स से आप पिछले 1 साल का डेटा प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो उसके अंदर, तो इट विल बी अ रियली, 365 बार बनेंगे या फिर 365 पॉइंट्स होंगे। 365 पॉइंट्स का मतलब ये है कि आपका डेटा पॉइंट बस, अगर आप एक एक्सिस के लिए 365 प्लॉट कर रहे हैं तो काफी ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में आपकी कोशिश ये होती है कि इसको वर्टिकल प्लॉट करें, जो टेक्स्ट है उसको रोटेट करके 90 डिग्री पे या -90 डिग्री पे ले आए आप लोग, ठीक है। तो इनका हर एक चीज का इसमें कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा टास्क कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये तो सिंपल मैनिपुलेशन थे। हम कुछ सिंपल ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है वॉयलिन प्लॉट। यस ममता, मेरा नहीं बना लास्ट वाला, एरर कुछ भी नहीं अगर आई और आया भी नहीं। ऐसे बन के नहीं आया, आपने नंबर यही यूज किया, 3000 -3000 टू 50,000, -100 टू 150। सर मेरा भी नहीं आया, ब्लैक स्क्रीन आ रही है रन होने के बाद। ब्लैक स्क्रीन आ रही है रन होने के बाद। शो मी योर कोड, एक बार अपना कोड दिखाओ, और जो भी स्क्रीन आपके सामने आ रही है उसको पूरा दिखाओ मुझे फर्स्ट। सर हो गया। हो गया, ठीक है। ट्रांसफर, ओके। Okay, this is really dark. What do you have Python here? पूरा ब्लैक कर दिया है स्क्रीन। शाइस्ता आपके साथ, सॉरी दिवाली, आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने डेटा तो कुछ प्लॉट किया ही नहीं है। आपने यूज किया है plt.xlim, plt.ylim, plt.xfix, बट इसके अलावा आप इसमें डेटा भी तो प्लॉट करेंगे ना, plt.plot x, पावर 0.5, ये वाला लाइन आपने लिखा ही नहीं ठीक है। है, दिस इज द ठीक है पार्ट दैट यू आर सर। मिसिंग। कोई प्लॉट बन के नहीं आया। ओके सर फिर वो सेकंड वाला ना बहुत टाइम ले रहा था तो ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया, इसलिए अच्छा, मिस हो गया शायद से। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सभी का क्लियर है, क्योंकि अब हम इसके बाद वी आर सर गोइंग टू मेक सम अदर ग्राफ्स। यस, सर बन तो गया, बट एक बार प्लीज समझा दो मेरे को, मतलब कुछ टर्म समझ नहीं आ रही है। मैंने पिछले भी एरर्स मतलब वो डाउट निकाल के बैठी हुई हूँ मैं। ओके, आप डाउट्स पूछो मतलब मुझे और जल्दी। एक सेकंड रुक जाओ, आंसर एक तो सेकंड। निकल रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हेलो ममता, सर हाँ ठीक है, अब पूछो। यस, सर फर्स्ट तो ये जो अभी आपने कराया है
इसको पूरा एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दो, फिर मैं दूसरा वाला पूछती हूँ। पहला फिगर जो हमने बनाया सब प्लॉट। कई बार क्या होता है कि हम जब डेटा प्लॉट करते हैं तो हम नहीं चाहते कि 10 फिगर प्लॉट हो, हम चाहते हैं कि एक ही फिगर के अंदर 10 इमेज मेरी प्लॉट होके आ जाए, जिससे कि उन फिगर्स को देखना और उनको कंपेयर करना काफी आसान हो जाए, है ना। 10 अलग अलग जाएंगे तो फिर हमको कंपेयर करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो 10 फिगर रखे हमने, या 5 फिगर या 2 फिगर, जो भी चाहिए हमें। और ऐसा करने के लिए हम मैटप्लॉटलिब में एक फंक्शन क्लास बनी हुई है सब प्लॉट्स नाम की, सब प्लॉट्स। तो हम सब प्लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, और सब प्लॉट्स दो तरीके से कर सकते हैं। ये पुराना तरीका है जो हमने ऊपर किया है, और ये नया तरीका है जो हमने इधर इस्तेमाल किया है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिगर कॉमा ए इज इक्वल्स टू plt डॉट सब प्लॉट्स 2,2, ठीक है। तो इसने दो इनपुट लिए हैं, एक फिगर का और एक लिया है ए। फिग से हम फिगर का मैनिपुलेशन कर सकते थे, जो हमने इसमें किया नहीं है। एक का इस्तेमाल और करके हमने डेटा को प्लॉट किया है। सर जो ममता, ये रेंज दी है 1 to 10, ये मतलब अगर हाँ हम एक ग्राफ बनाते हैं तो कैसे आएगा मतलब? देखो, ए रेंज कर क्या रहा है, ये आपको आउटपुट दे रहा है, एक एनपी अरे दे रहा है, एक एनपी अरे जिसमें वैल्यू आती है आपकी 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतनी वैल्यू दे रहा है। तो प्लॉट करते वक्त ये कर क्या रहा है, पहले x, ये एक एक वैल्यू उठाता है, ठीक है। एक वैल्यू x वाली और एक वैल्यू y वाली, y को भी हमने x से ही रिप्रेजेंट किया है इसके अंदर, ठीक है। तो पहली वैल्यू इसने उठाई 1, इसकी भी 1 प्लॉट कर दिया। इसका वैल्यू उठाया 2 और इसका भी 2 प्लॉट कर दिया। इसका वैल्यू उठाया 3 और इसका भी उठाया 3 प्लॉट कर दिया। 4 4 प्लॉट किया, 9 9 प्लॉट किया। तो ये प्लॉटिंग बेसिकली वैसे ही है जैसे हम लोग भी कॉपी में करते हैं, ठीक है। फिर वो सेकंड फिगर में आया, सेकंड फिगर में x देखा, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू देखनी है वो है x स्क्वायर। वैल्यू कैलकुलेट करेगा, वैल्यू आएगी उसको ग्राफ में प्लॉट करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 2 के लिए, फिर 3 के लिए, 9 के लिए, ऐसे करके ये प्लॉट करता जा रहा है 1 बाय 1 सभी, ठीक है। और सर ये क्यूब और स्क्वायर कैसे निकल रहा है उसमें? मतलब मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगता नहीं कि अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर ही पॉइंट कर रहा है मतलब। ओके, आपको ऐसा लगता है, ओके। लेट मी रन द फिगर अगेन, ओके, लेट मी रन इट। ओके, मैं अगर तो आप बस ध्यान से समझ में देखो नहीं। तो यहाँ पे 2 है, तो ये लगभग 2 के पास ही होके आता है। देखो लगभग 2 के पास, ठीक है। पॉइंट हमने किया कौन यहाँ सा? नीचे, हाँ देखो नीचे वैल्यूज x और y लिखी हुई नजर आ जाती है, यहाँ पे x और y लिखा हुआ नजर आता है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये 4 है तो ये लगभग 4 इसके आसपास नजर आएगा। देखो ध्यान से देखोगे, क्योंकि अब हमारा अब पिक्सल्स जो हम इस पे पहुंच पा रहे हैं वो शायद हम एक्यूरेटली नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर मैं अंडर रूट की बात करूँ या फिर तुम स्क्वायर की बात कर लो, 4 का स्क्वायर है, अगर मैं इसको ऊपर जाने की कोशिश करूँ 16 के अराउंड ही है। देखो ये पॉइंट पे पहुंचूंगा तो ये 16 ही हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू बिल्कुल सही है, वो बस फिगर इतना छोटा है कि हमको ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है। पर ये वैल्यू ओके ह्यूमन फिगर से ज्यादा बेटर है, ठीक है। सर ओके सर। यस, सर मैंने सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली है, लेकिन जब मैं इंपोर्ट करती हूँ तो रन के वक्त आता है दैट मॉड्यूल नॉट फाउंड, इंपोर्ट नहीं हुई है, लाइब्रेरीज नॉट इंपोर्टेड। ये पता है शायद कौन क्यों से होगा? ये एरर पहले मेरे पे भी आई थी। इस आपके लैपटॉप में से पाइथन, इसी वजह से महक, आपने मेरे एक पहले। से ज्यादा पाइथन वर्जन इंस्टॉल कर रखे हैं। कई बार क्या होता है कि आपका जो एक वर्जन है जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, जो एनवायरनमेंट वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, आप उस वर्जन में आप पाइथन के लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन जो वर्जन आप पाइथन का रन कर रहे हैं वो दूसरा वाला वर्जन है जिसमें आपने इंस्टॉलेशन नहीं किया है, इसलिए आपके पास एरर आ रही है। अगर आपने एक से ज्यादा पाइथन का वर्जन इंस्टॉल किया है तो दूसरे वर्जन को, जो कि एनवायरनमेंट वेरिएबल में नहीं आता, जैसे कि अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे ना, विंडो प्लस आर CMD, अगर आप इसको खोलते हो, आप यहाँ पे टाइप करोगे पाइथन, तो जैसे ही पाइथन टाइप करोगे तो पाइथन इंटरप्रेटर चालू हो जाएगा और यहाँ पे आपको उसका वर्जन नजर आ जाएगा 3.8.2, ठीक है। तो ये वाला वर्जन है जो आपको आइडल का खोलना है। अगर आपने एक से ज्यादा खोला हुआ है, तो अगर आप एक से ज्यादा पाइथन इंस्टॉल्ड है, लेट्स सपोज 3.8 और 3.7 दोनों इंस्टॉल्ड है, आपको यहाँ पे दो आइडल नजर आएंगे, 3.8 और 3.7।
आपको उसी आइडल पे काम करना है जो कि यहाँ पे आप करते हो तो रन करता है, जिसमें आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, सर मेरे में तो मेरा एक इंस्टॉल्ड है, लेकिन मेरे में तो फिर भी आता है नो मॉड्यूल नेम मैटप्लॉट। सिर्फ एक ही पाइथन इंस्टॉल्ड है हाँ पारस, सिर्फ यस एक पाइथन सर, इंस्टॉल्ड है। यस सर। और आप यहाँ पे पाइथन टाइप करते हो तो ये इंटरप्रेटर ओपन होके आता है। यस आप इस चीज को एक बार फिर से वेरीफाई करो एंड देन लेट मी नो, या उसके बाद आई लेट यू नो क्या करना है। ठीक है, और सर ये जो और ये थ्री प्रॉब्लम्स आपको क्लास से पहले रिजॉल्व करनी होती हैं, क्योंकि क्लास में इन चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे मैटप्लॉटलिब आज खत्म हो जाएगा, और अगर आप लोगों का ये रन नहीं कर रहा है अभी तक मॉड्यूल, तो यू आर ऑलरेडी लेट, लॉट मोर लेट देन यू शुड बी। इसको, इस पे ध्यान दो, इसको सही करो। ठीक है, some of you are facing a Unicode error। ठीक है, वो ऐसा इसलिए एक होता है कि कई इंस्टॉल्ड बार जो डेटा हमारी फाइल में है, उसका जो कोड होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और जिसके ऊपर हम काम करने चाहते हैं यूनिकोड, वो उससे मैच नहीं करता। उसके लिए हम फिर यूनिकोड इक्वल्स टू UTF-8 यूज करते हैं, जो कि हमने कल भी ट्राई किया था। कल आई थिंक निशा आस्क्ड मी दिस थिंग आफ्टर द क्लास, और निशा को बताया भी था हमने कि जब भी आपका यूनिकोड मैच नहीं करेगा तो आप साथ में यूनिकोड पास करेंगे टू द फंक्शन। ठीक है, कि यूनिकोड इक्वल्स टू UTF-8 आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। My God, कितनी एरर आ रही है आप लोगों की। शाइस्ता, अभी जो आपने कोड भेजा है, सॉरी आपने जो एरर भेजा है, उस एरर में बेसिकली उसका मतलब ये है कि आप जो फाइल रन कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली रन नहीं हो पाई है। ठीक है, और आपने लिखा है डी कॉलन नहीं लिखना है शायस्ता, सिर्फ आपको डेटा एनालिसिस /data/cancer-data.csv लिखना है। कल की जो क्लास थी, अगर आपने इसमें ध्यान दिया हो, तो हमने ड्राइव का नाम कहीं पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, आपको यहाँ पे बस ये लिखना है data/cancer-data.csv। ये आपका फिगर रन करने लग जाएगा। ठीक है, ओके, तो I'm now going to take new file। सर मेरे एरर ने वो मैं डाउट नहीं कर रही हूँ अभी। यस पूछो, मैं आई टोल्ड यू टू आस्क। जल्दी करो, we have to make 3 plots, और उसके बाद सीबॉर्न भी शुरू करना है। Okay, I'm going to import libraries meanwhile। ठीक है, import numpy snp, import matplotlib.pyplot.spld, import pandas spd। ठीक है, and I'm going to read the cancer file। ठीक है, so I'm going to copy the code straight away, okay, from the previous file। शाइस्ता, आपको जो चीज करनी है, आपको लिखना है d=pd.read_csv। डबल कोड के अंदर आपको लिखना है data/cancer-
डेटा डॉट CSV, आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, आपका रन कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। फाइल का लोकेशन देना, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। Okay, so I have read the data now. ठीक है, और the next thing that I'm going to do is I'm going to read the name of the columns. ठीक है, मैं columns का नाम पढ़ना चाहूंगा जिनका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। So I'm going to print d dot columns. ये मुझे columns के नाम दे देगा जो इस पर्टिकुलर CSV फाइल के अंदर है। ठीक है, I'm running this thing. शायस्ता, I have typed it on the screen here. आप यहाँ से देख के उसका इस्तेमाल करें। Okay, so these are the name, ID, diagnosis, radius mean, texture mean, perimeter mean, area mean, smoothness mean और बहुत सारे ऐसे हैं। मैं ऐसे चार का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ठीक है, I'm going to use 4 of these। ठीक है, I'm going to stop printing it now। ठीक है, और अभी मैं जो प्लॉट बनाने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं बॉक्स प्लॉट। ठीक है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है उसने कभी न कभी बॉक्स प्लॉट का इस्तेमाल जरूर किया है। इकोनॉमिक्स, इवन बीकॉम में भी आप लोगों ने इसका इस्तेमाल किया होगा कभी न कभी, राइट। तो ये चीजें क्या होती हैं ये मैं आपको स्टैटिस्टिक्स वाली क्लास में बताऊंगा। बॉक्स प्लॉट क्या है, वायलेंट प्लॉट क्या है, इनका मतलब क्या है। ठीक है, अभी हम पहले इनको ड्रॉ करना सीख रहे हैं बस। ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं हम सबसे पहले। ठीक है, और बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए टेक सम डेटा हियर। ठीक है, okay. Okay, so I'm going to use 4 columns here. Okay, Shashta, run करके आपका code. Perfect. I think I'm going to do this thing. Okay, so I'm going to take the columns B, and the first column that I'm going to read is radius mean. Okay, I'm going to read the radius mean here. The second column that I'm going to take is texture mean. Okay, here we have texture mean. Texture mean. The third is perimeter mean. Okay. And the fourth is, let's say we are taking area को ले लेते हैं क्योंकि perimeter लिया हुआ है। इन चारों का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, और इन चारों को मैं असाइन करने जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर कलेक्शन को। ठीक है, आई मीन वेरिएबल्स को, COLLECTN_1, राइट, इक्वल टू दिस। सिमिलरली कलेक्शन को ये हो जाएगा। ठीक है, कलेक्शन 3 को ये हो गया, एंड कलेक्शन 4 को ये हो गया। ठीक है, तो वी हैव 4 कलेक्शंस हियर। ठीक है, मैं इनको प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं फिगर इज इक्वल टू PLT डॉट फिगर ले लिया हमने। ठीक है, अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, और AX इज इक्वल टू फिग डॉट एड अंडरस्कोर एक्सेस। ठीक है, और इसमें हम 4 वैल्यू पास करने वाले हैं, 0,0,1,1। ठीक है, उसके बाद हम बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करने जा रहे हैं। BP इज इक्वल टू AX डॉट बॉक्स प्लॉट।
Okay, then so let's go. Show. Okay, I had to concatenate it. I was waiting for it and got an error. एक्चुअली इसकी क्या जरूरत है? सबसे पहले मैं डायरेक्टली इसी का प्लॉट करते हैं और देख लेंगे कैसा बन के आता है, उसके बाद बाकी सब देखेंगे। Let's have a look at it first, okay? Okay, so this is the first box plot और ये रेडियस मीन के लिए है। तो बेसिकली बॉक्स प्लॉट का कुछ सीन ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारा मीन रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, ये सेकंड क्वार्टाइल होता है, ये थर्ड क्वार्टाइल होता है और यहाँ से यहाँ तक फोर्थ क्वार्टाइल होता है। इसके बाहर जो कुछ भी होता है उसको हम आउटलायर्स बोलते हैं। दिस इज सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बॉक्स प्लॉट। इसको हम बाद में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हुए मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। एक से ज्यादा बॉक्स प्लॉट भी हम एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं सिंपली कोहली हम, ठीक है। हमारे पास 4 है ये, ठीक है। I'm going to remove these 4 names actually. So we will use them. Okay, I'm going to do is data is equal to uh, firstly this, then this, then we have this. I'm going to put them into one, okay, and I'm going to use a subplot because I want to plot more than one figures, right? So I'll have to use a subplot thing here. So this is the data, okay, that I'm going to use data, and I'm going to use figure 1 so that the name is separate from that one. AX1 is equal to PLT dot FIGURE, PLT dot figure. Actually subplots, no, subplot करना है, subplots, PLT dot subplots, and after that AX1 dot BOXPLOTS और इसके अंदर मैं डेटा को पास कर दूंगा, ठीक है। So PLT dot show, you can do that, and they should show us हमें एक से 4 सब प्लॉट इसको दिखाना चाहिए। हमें क्लोज करूंगा मैं, तो हमारे पास बॉक्स ओ ऐड कर दिया क्या, ये हमारा एक सब प्लॉट प्लॉट करेगा जिसमें 4 बॉक्स प्लॉट होने चाहिए। Why am I getting there here when I shouldn't be getting there? PLT dot subplots. This should work.
Yes. Oh, how silly can I be? Okay, but I think this time we should get the output. Okay, so this time we have got an output और इसको देख के हमें मालूम पड़ रहा है, इस फिगर को देख के अगर आप ध्यान से देखो तो जो मीन वैल्यू है फोर्थ के लिए, जो कि फोर्थ हमारा एरिया, ठीक है, एरिया के लिए जो मीन वैल्यू है वो पैरामीटर से काफी ज्यादा है, ठीक है, रेदर वो टेक्सचर मीन और पहला था इससे भी काफी ज्यादा है, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि पैरामीटर का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिम अगर मैं बात करूं एक सर्कुलर फॉर्म का पैरामीटर का, तो होता है वो 2 पाई आर, इट्स सरकमफेरेंस, राइट, लेकिन उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हमेशा उससे काफी ज्यादा निकल के आता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ हाई द वैल्यू इज। और दूसरी चीज जो हमें नजर आती है कि हमारे डेटा में हर बार आउटलायर्स काफी ज्यादा हैं, देखो एरिया में भी आउटलायर्स ज्यादा हैं, पेरीमीटर में भी ज्यादा है उसी अकॉर्डिंगली, और टेक्सचर मीन में भी ज्यादा है, और हमारा चौथा चीज जो है रेडियस मीन उसमें भी ज्यादा है। रेडियस, टेक्सचर, एरिया और पैरामीटर सभी में हमारा आउटलायर्स काफी ज्यादा है, ठीक है, और शायद वही हमें बता भी पाएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर को कैसे डिटेक्ट करना है कैसे नहीं, वो चीज बात की है और हम वहां तक अभी पहुंचे नहीं है, ठीक है। ये होता है सिंपली बॉक्स प्लॉट, ठीक है, और बॉक्स प्लॉट काफी सिंपली हमें इंफॉर्मेशन पब्लिश करके दे, ग्राफ के थ्रू बता के देता है कि ज्यादातर वैल्यूज कौन से एरिया में बिलोंग कर रही हैं, या फिर डेटा हमारा किस तरीके से वेरी कर रहा है हमारे पूरे डेटा सेट के अंदर, राइट, क्योंकि अगर ज्यादातर डेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, इसका मतलब ये है कि मीन से कम है हमारा ज्यादातर डेटा, मीन से ज्यादा है, तो अगर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ज्यादातर डेटा हमारा मीन से ज्यादा है, ज्यादा डेटा, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन हमारा पास अल्टीमेटली किस तरीके का डेटा है उसके ऊपर ये फिगर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और फिगर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वॉलिन प्लॉट, ठीक है, तो वो हमारा नेक्स्ट है, इसको प्लॉट कर लो आप पहले एंड लेट मी नो कि आपका हो गया है, ठीक है। We have a question. Good, Swati, good. Okay, hello, code. Code. हो गया सभी का? मीडियम शो करता है, मेन शो नहीं करता, ये भी है। Let me know as soon as you are done, क्योंकि violin plot is basically the last topic,
that we are going to do in Matplotlib. उसके बाद हम लोग बेसिकली सीबॉर्न को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। एंड शायस्ता, आपका प्रॉपर्ली रन होना आज शुरू हुआ है, तो आप कोशिश करें कि पिछली क्लास में और इस क्लास में जो कुछ भी हुआ है आप सभी का प्रैक्टिस करके पूरा करें। शनोवर का हो गया है, आई एम होपिंग कि बाकी लोगों का भी हो रहा है। आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस 2 मोर मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट के हो अंदर चुका आपको फिनिश करना है। हाँ ओके, आपका भी हो गया, ठीक है, ममता का भी हो गया है। ओके, just 1 more minute and we'll start with the violin part. Okay, writing violin part here. All these plots are used basically to understand the data, uh, and also to explain some of the facts that we have observed in the data to other people in the department or even to the customer, if we can explain them the graph, or if they are from our field, right? Because then they will be able to understand what a volume plot means, or what a box plot means, what a contour plot means, and other things that we have learned about, right? Okay, so I'm going to start with volume plot now. Okay, and the code for volume plot is exactly same as we had the box plot. Volume plot भी box plot की तरह ही होता है, except here the difference is कि box plot देख के हम density का अच्छे से पता नहीं लगा पाते हैं काफी बार, ठीक है। तो density का अगर हमें पता लगाना है box plot की information के साथ, तो हम volume plot का plot करते हैं, क्योंकि ये density की information भी हमें extra देता है। I'm going to draw a volume plot for radius mean, जैसे कि हमने बॉक्स प्लॉट बनाया था, तो I'm going to do figure is equals to plt dot figure, ठीक है। I'm going to use here figure 2 just to separate the variables, and x2 is equals to fig dot add underscore, actually add access की जरूरत क्या है, हटाओ उसको। going to do here is x की जरूरत ही नहीं है, fig 2 ax2 and ax2 is equal to plt actually dot violin plot. Okay, inside it I'm going to pass d radius mean, ठीक है। d radius mean को हमने इसके अंदर पास कर दिया, उसके बाद plt dot show, ठीक है। Okay, let's see how it looks like. A simple volume plot. This is the box plot that we got there for multiple figures. Non-iterable figure PLD or figure 15 is to PLD or figure. Okay. Let me use some plot here that should work for me. This should work. Oh man.
ओके, सो दिस इज अ वॉलिन प्लॉट हियर, और ये जो मार्क है यहाँ से यहाँ तक ये हमें डेटा का स्प्रेड बताता है। और इस साइड देखो तो ये दिखा रहा है कि 10 to 15 के बीच में ज्यादातर वैल्यूज निकल के आई हैं हमारी। अगर 10 से 0 के बीच में देखें अगर हम, तो वैल्यूज थोड़ी कम है, और 25 से ऊपर जो वैल्यूज है वो तो लिटरली बहुत ही ज्यादा कम है। तो हमें अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई अबाउट द डेंसिटी, जो कि इंफॉर्मेशन बॉक्स प्लॉट में नहीं थी। वहां पे पूरा बॉक्स बन के आया हुआ था सेकंड और थर्ड के लिए, और फिर हमारे पास विस्कर्स थे फर्स्ट क्वार्टाइल और लास्ट क्वार्टाइल को दिखाने के लिए अल्टीमेटली, राइट। ये हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकल के आए वॉलिन प्लॉट में। और इसी तरीके से हम वॉलिन प्लॉट प्लॉट कर सकते हैं इन चारों डेटा के लिए, जो कि डेटा हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो हम गोइंग टू डू द एग्जांपल 2, एग्जांपल 1 एंड example 2. Okay, example 2 में I'm going to take figure 2 comma ax3 equals to plt dot sub plots. Okay, and ax3 dot violin plot, and inside that I'm going to pass data in plt dot show. Okay, the first box plot, the second figure, the volume plot, and now we have the volume plot for all these 4 figures. अगर हम 0 से 500 को थोड़ा सा और बड़ा करके देख पाएंगे तो हमको दिखेगा कि वैल्यूज काफी कितने डेंस है कितने डेंस नहीं। जैसे कि आप अगर इसके लिए देख पा रहे हैं तो बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। और एरिया के लिए ये हमारा एरिया मीन था, राइट, ये हमारा पेरीमीटर मीन था। तो पेरीमीटर मीन हमारा लगभग ये 200 के अराउंड तक जा रहा है, ठीक है, विच इज रीजन 200 से नीचे है बल्कि, राइट, 1500 तक, 1500-1600 तक जा रहा है। इसीलिए हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है 2500 तक जा रही है, राइट, क्योंकि ये 25 प्लस बी हमारा निकल के अगर मैक्सिमम 150-200 जा रहा है तो उनका मल्टीप्लीकेशन राउंड अबाउट 2500 के राउंड जाएगा, राइट। मोर और लेस, बट हमारे डेटा में 2500 तक जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा वॉलिन प्लॉट था। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जाएंगे, ठीक है, वो होगा सी बॉन्ड, ठीक है। उसको हम बस एक क्लास देने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास सी बॉन्ड के ऊपर होगी। और सी बॉन्ड में भी हम यही सारे प्लॉट्स फिर से बनाएंगे, लेकिन थोड़ा और बेटर तरीके से, और 2-3 नए प्लॉट भी बना के देखेंगे उसमें, ठीक है। और अगला क्लास में जो हम काम करेंगे वो पोकेमॉन डेटा के ऊपर काम करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो पोकेमॉन डेटा को ही हम तरीके से विजुअलाइज करके देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जिसका इस्तेमाल होगा बस हम उतनी ही स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अगर किसी के पास कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो पूछ सकता है। Okay, so looks like none of you have any queries for today. It is good. तो जिसकी भी, जैसे कि पारस आपके पास प्रॉब्लम थी कि आपका पाइथन अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, आई मीन पाइथन तो वर्क कर रहा है बट सर हो गया वो। क्या तुम्हारा इशू सॉल्व, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई भी है जिसका मैट प्लॉट है, सर एक बार लास्ट वाले का दिखाना। ओके, आपको देखो, अगर अभी भी कोई ऐसा है जिसका कि मैटप्लॉटलिब, नमपाई, पांडास, सीबॉर्न, इसमें कोई भी एरर आ रही है तो लेट मी नो, आज ही उसको सॉल्व कर लेते हैं। I'm stopping the recording as well now, ठीक है। सर यस बच्चे।